کیمپس میں لیول 1 کا اسٹوڈنٹ کلاس فیسیلیٹیٹر ہوں. جی آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معزز مہمان موجود ہیں، مس میڈم یم مشتاق ایجوکیشن والی. تو آئیے آج ہم ان سے بات کریں گے ان کی تعلیمی سفر کے بارے میں، ان کی لائف جرنی کے بارے میں، ان کی اچیومنٹس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی میڈم کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. جی بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دیے. میں چاہوں گا سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو نہیں جانتے سب سے بتا جی تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم، اور بہت شکریہ سر آپ نے مجھے اپنی لائیو اسٹریمنگ میں بلایا. میرا نام میرا مشتاق ہے، میں ملتان میں رہتی ہوں، پنجاب پاکستان میں، اور میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے انگلش لٹریچر میں، اور جو ہے میں نے ٹیچنگ کا جو ہے وہ کورس کیا ہوا ہے، ٹیچنگ سرٹیفکیشن ہے میرے پاس، اور میرے پاس ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے، اور میں ایک ٹیچر ہوں. اس کے علاوہ جو ہے اب میں ایک پوڈ کاسٹر ہوں اور ایک کنٹینٹ کریٹر ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں نے ایک اور جو ہے اپنا لائیو اسٹریم شروع کیا ہے، جس میں اس کا نام ہے دا ریفلیکشن روم، جس میں میں ریفلیکشنز اور ریویوز جو ہے اپنے دیتی ہوں مختلف ایجوکیشنل کنٹینٹس کے بارے میں. اور اس کے بعد میں انشاءاللہ بہت جلدی لانچ کرنے جا رہی ہوں اپنا ایجوکیشنل کورس. تو وہ سب کچھ جو ہے میں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جو ہے وہ لانچ کروں گی انشاءاللہ، جس میں بچوں کو بہت ساری چیزیں دوں گی، اسپیشلی وہ انگلش لینگویج کے بارے میں ہوگا. اور اس کے ساتھ جو ہے میں موٹیویشنل کنٹینٹ جو ہے وہ کریٹ کروں گی، تو اس کی طرف بھی میں بڑھ رہی ہوں. تو یہ میرا چھوٹا سا تعارف ہے. اور میری فیوریٹ پرسنالٹیز میں جو ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی زوجہ پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور اس کے بعد ہمارے قومی ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور لیڈی ڈیانا. یہ میرے جو ہے فیوریٹ پرسنالٹیز ہیں. جی سر. جی ماشاء اللہ بہت خوب. اچھا سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا، ہمارے ویورز جاننا چاہیں گے آپ کے تعلیمی سفر کے بارے میں. آپ نے تعلیمی سفر کے بارے میں بتایا، تو اس ایجوکیشن کی فیلڈ میں آنے کی کوئی خاص وجہ؟ سر جب میں اسکول لیول پر تھی، کالج لیول پر تھی، تو مجھے لگتا تھا کہ مجھے جو ہے نا ڈاکٹر بننا چاہیے، MBBS کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی کچھ حالات ایسے ہوئے اور کچھ بس وقت قسمت کی بات ہے، تو میں وہ نہیں کمپلیٹ کر سکی. تو اس کے بعد جو میری دوسری پرائورٹی تھی وہ ٹیچنگ تھی. تو میرے جو مطلب حلقہ احباب تھے اور میرے فیملی ممبرس تھے اور میرے ٹیچرس تھے، وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ بہت اچھا دوسروں کو سکھاتی ہیں، آپ کی بات جو ہے وہ کمپلیکس چیزوں کو بھی سمپل کر دیتی ہے، تو آپ جو ہے نا ٹیچنگ کو اپنا کیریئر بنائیں. تو پھر جو میری مدر تھیں اور جو میرے فیملی میں کافی ساری فیمیلس تھیں، وہ ٹیچنگ کے پروفیشن سے منسلک تھیں. تو میں نے بھی پھر اس کو اپنے لیے چوز کیا، اور پھر جو ہے میں نے اسی سے ریلیٹڈ آگے گریجویشن کیا، پھر ماسٹرز کیا. تو ٹیچنگ جو ہے وہ ایک ایسا کام ہے جس کو کرنے سے میں کبھی تھکتی نہیں ہوں، اور مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے جب میں کسی کو کوئی چیز بتاتی ہوں، یا کسی بچے کو، اسٹوڈنٹ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور میں اس کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاتی ہوں، اور ان کی جو چیزیں مشکل وہ آسان ہو جاتی ہیں، تو اس سے مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے میں نے اس پروفیشن کو جوائن کیا، اور آگے بھی اس کے مختلف اس کو مولڈ کر کے اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ بھئی اور کیا کیا کس طرح ہم جو ہے لوگوں کو بینیفٹ پہنچا سکتے ہیں. تو اب اس پر میں کام کرنا شروع کری آن لائن ڈیجیٹل ورلڈ میں. جی بہت خوب. اچھا ایک چیز بتائیے کہ اکثر خواتین کو دیکھا جاتا ہے کہ خواتین زیادہ تر جو ہے ایجوکیشن کی فیلڈ میں آتی ہیں. دوسری فیلڈ میں بھی ہماری بہت سی محترم خواتین ہیں، اپنی زندگیوں میں ہیں، پاکستان میں دوسرے ملکوں میں، لیکن اکثر دیکھا جائے کہ خواتین جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو، ایجوکیشن والی فیلڈ جو ہے وہ اپنانے کو بہتر سمجھتی ہیں. اس کی خاص وجہ ہے؟ خواتین کی ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں آنے کی خاص وجہ پوچھ رہے ہیں آپ مجھ سے؟ جی جی.
जी सर, मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बहुत लंबा टॉपिक है, मेरे ख्याल 2-3 घंटे इस टॉपिक पर बात हो सकती है, लेकिन शॉर्टली मैं आपको ये बताऊँगी कि अल्लाह ताला ने जो है ना मर्द और औरत का जो दिमाग है या उसकी जो इंजीनियरिंग की है वो डिफरेंट की हुई है। कुछ फैक्टर्स जो हैं वो औरत की पर्सनैलिटी में ज़्यादा हैं, कुछ कम हैं, इस तरह मर्द में भी चीज़ें हैं। क्योंकि हर जो अल्लाह ताला ने हर मखलूक पैदा की है उसका अपना रोल है, अपना एक करैक्टर है। तो जो औरतें होती हैं उनमें सॉफ्टनेस ज़्यादा होती है, उनके अंदर जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, उनको ये जो लव केयर और ये चीज़ें होती हैं उनमें ये फैक्टर ज़्यादा होता है। तो जब हम ये जो लर्निंग के चीज़ों में जाते हैं जहाँ पे हम सीखते सिखाते हैं, चीज़ों को समझना है, बच्चे हो गए जैसे, और इसके अलावा जो हम प्रोग्रेस को अडॉप्टेशन को बात करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि बच्चे जो है हमेशा जिससे मोहब्बत करते हैं उससे सीखते हैं ज़्यादा। और जब हम चीज़ें सिखाने की तरफ आते हैं तो उसमें जितना हम जो है केयर, लव और उसे हम क्या कहेंगे प्रोटेक्शन का एहसास दिलाते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स और इन चीज़ों को बेहतर करते हैं। और जो औरत में अल्लाह ने क्वालिटी रखी है मदरहुड की, जिसमें वो ट्रस्ट देती है अपने बच्चों को भी और बच्चों को भी जिनसे भी वो मोहब्बत करती हैं, तो ये जो चीज़ें होती हैं औरत की पर्सनैलिटी में ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट करती हैं। और इस पॉजिटिविटी से जो है ना लर्निंग का प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाता है। जब भी बच्चे ट्रस्ट करते हैं और लव करते हैं और केयर को, क्योंकि बच्चे यही हर वक्त मांगते हैं, तवज्जो मांगते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। तो ये काफ़ी सारे काम जो है ख़वातीन ये बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हैं, तो इसलिए वो ये चूज़ करती हैं और इसमें रिस्पेक्ट भी है ज़्यादा। और ये जो शोबा है ये क्योंकि नई हमने अपनी कौम तैयार करनी है, तो हिटलर भी ये कहते थे कि आप मुझे अच्छी माएँ दे दो तो मैं आपको अच्छी कौम दे दूँगा। तो जहाँ पर अगर हमने अपनी कौम को बनाना है तो उसमें अच्छी माँओं का बड़ा किरदार है, और एक टीचर जो है वो भी एक माँ होता है। तो इसलिए फिर जो औरतें हैं वो इसको चूज़ करती हैं इसमें, क्योंकि उनको रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा है। औरत को रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो वो फिर जो है ना इस फ़ील्ड में ज़्यादा आते हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि इसलिए जो औरतें हैं इसको ज़्यादा चूज़ करती हैं। तो इस तरह वो हमेशा से टिल उनके जो डेथ बेड है ना तब तक वो अपने लिए जो है ना वो एक फ़ेवरिज़्म जो है और या अपना ग्रुप कह लें उसको लीडर एक्ट के तौर पे वो अपना ग्रोथ साथ लेकर चलती हैं। तो ये सिलसिला चलता है इसीलिए। जी, बिल्कुल फरमाया आपने, इसमें कोई शक नहीं है। और इसीलिए कहा जाए कि एक मर्द की तालीम एक खानदान की तालीम है और एक औरत को तालीम देना कोई को तालीम देने का, और दो चाहने से जहाँ पे हमारी जो है वो एक अंसर है, तो उनमें एक प्यार मोहब्बत बच्चों के साथ उनमें जो है ना उस होता है, वो मत एक सख्त तबीयत होती है। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया। स्टूडेंट वाकई इसमें कोई शक नहीं है, कोई भी स्टूडेंट हो, उसके टीचर चाहे वो मेल हो फीमेल हो, चाहे वो मर्द हो, टीचर अगर अपने उस्ताद से खुश नहीं है, अगर अपने उस्ताद से वो मोहब्बत नहीं करते, तो उसे जो है ना वो तालीम हासिल करना नहीं चाहते। जी, मैं आपसे अपना सवाल, नेक्स्ट सवाल ये है कि कंटेंट क्रिएटर ये आपने कब से शुरू किया और इसका ख्याल आपको कैसे आया? अच्छा देखिए, कंटेंट क्रिएशन जो है ना उसकी बहुत सारी टाइप है। मैं बहुत ज़्यादा इस बात से परेशान रहती थी जब मैं सोशल मीडिया पे कंटेंट देखती जो बड़ा इर्रेलेवेंट होता है, इसको हम कहते हैं सस्ती शोहरत। इससे मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। सर मैं आपको जो सही बात बताऊँ ना, मुझे ये लगता था कि ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है ना इसको उन लोगों ने काबू कर लिया है जो कि इसको डिजर्व नहीं करते, और हम जैसे लोग एजुकेटर्स हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम इससे दूर हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो देखते हुए मोबाइल है, टिकटॉक है, फेसबुक है, यूट्यूब है, और उस पे छाए हुए क्या कौन लोग हैं। इससे मुझे बड़ी दिली तकलीफ होती है। तो मैं सोचती थी कि इसकी वजह ये नहीं है कि ये लोग आ रहे हैं, इसकी वजह ये कि हम लोग उनको प्लेस दे रहे हैं। हम लोग जब खुद आ ही नहीं रहे तो फिर ऐसे लोग ही आएंगे, वही कमाएंगे, वही उनके पास जो है वो दिखाएंगे। फिर उसके बाद मैंने जब रेहान स्कूल ज्वाइन किया तो वहाँ पे हमारी बड़ी प्रैक्टिसेस होती है रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट में, कि आपने जो है लाइव जाना है, कंटेंट यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पर, हर जगह पे प्रोड्यूस करना। तो मैंने कहा भाई ये तो भाई बहुत अच्छा काम है, क्योंकि मेरे अंदर बिल्ड इन क्वालिटी है टीचर की और मुझे बहुत सारे मसाइल मास्टर के नज़र भी आते हैं। तो अब मुझे प्रैक्टिस भी हो गई, तो मैं क्यों ना अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड करूँ, अपने सोशल हैंडल्स को स्ट्रॉन्ग करूँ और मैं वो चीज़ क्रिएट करूँ ताकि मैं भी सोशल मीडिया पर बताऊँ कि पाकिस्तान का ये भी
चेहरा है। अपने बच्चों को भी मैं बताऊँ बेटा, सिर्फ ये नहीं है आपने फेसबुक इसलिए देखना है कि आप उस पे रील्स देखो, इंस्टाग्राम आपने इसलिए देखना है। ये तो हमारी मर्ज़ी है कि हम इन सोशल मीडिया हैंडल्स को किस तरह यूज़ करें। तो अगर मुझे अल्लाह ने सलाहियत दी है और आजकल दौर भी इसी चीज़ का है, तो फिर भई यानी कि मैं अगर यहाँ पर क्रिएट नहीं करूँगी, तो फिर वही लोग क्रिएट करेंगे, मेरे बच्चे वही देखेंगे, मेरे स्टूडेंट्स वही देखेंगे, तो क्यों ना उस प्लेटफ़ॉर्म पर आया जाए जिसको आजकल बच्चे या बाकी लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और उनको अपनी बात बताई जाए। तो पॉज़िटिविटी तो वैसे ही बहुत अट्रैक्ट करती है, अच्छी बातें सुनना चाहते हैं और अगर अच्छी बातें होंगी ही नहीं, ऐसे गाने होंगे, डांस होगा, ऐसी चीज़ें होंगी, इर्रेलेवेंट होंगी या बेहुदा मज़ाक होगा, तो बच्चों ने वही देखना है, उनको तो पता ही नहीं चलेगा। तो फिर मैं इसलिए इधर आई हूँ और मैं अब वो कंटेंट इंशाल्लाह क्रिएट करने की कोशिश करूँगी जो कि बच्चों के लिए मॉरल भी हो, उसमें वैल्यूज़ भी हों, उसमें बच्चों को तमीज़ और अदब की बात भी सिखाई जाए और पाकिस्तान का वो चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाए कि हम सिर्फ इर्रेलेवेंट चीज़ें बनाने में माहिर नहीं हैं, हम और बहुत अच्छा काम भी करते हैं। और उन सब लोगों को मैं ये वेलकम करती हूँ कि वो सब लोग इन प्लेटफ़ॉर्म्स पर आएँ क्योंकि गैप्स हैं यहाँ पर, कमी है बहुत ज़्यादा। अच्छी बात करने वाले लोग कम हैं। अगर हमने शादियाँ ही दिखानी हैं और ऐसी चीज़ें दिखानी हैं जिनमें बेजा असराफ है या मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं किस तरफ बात कर रही हूँ, तो वो उसके लिए हमें खुद आना होगा और हमें बात करनी होगी, अपने बच्चों को वो कंटेंट दिखाना होगा जो कि वो देख लें, वो प्लेटफ़ॉर्म पर आकर अपनी बात बतानी हो कुछ नए तरीके से। तो इंशाल्लाह मैं इसके लिए अब खुद कंटेंट क्रिएटर बनी हूँ क्योंकि मैं ही एक स्टेप लूँगी, मैं एक माँ हूँ, मैं एक टीचर हूँ। जब मैं खुद ही शाय नहीं होंगी, कैमरे पर आऊँगी, लाइव जाऊँगी, बातें करूँगी, तो जो बच्चों को लाइव चीज़ें और दिख रही हैं, मैं भी दिखूँगी। तो फिर हम खुद अपनी वैल्यूज़ यहाँ पर क्रिएट करेंगे और अच्छी चीज़ों को प्रमोट करेंगे, इसलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया है और इसमें हमें सबको फ़ायदा है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और ये वक़्त की ज़रूरत है, इस वक़्त की माँग ये है, तो हमें ये समझना चाहिए। जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। नेट पर अच्छे कंटेंट्स नहीं होंगे, अच्छी चीज़ देखने के लिए नहीं होगी, तो फिर जो कुछ वहाँ पे होगा वही देखा जाएगा, बड़े सारी चीज़ें वही देखेंगे। आजकल दौर में अच्छा कंटेंट क्रिएटर्स की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो सब जो है ना इस यूट्यूब की मदद से, की मदद से दूसरों को सिखा सकते हैं, दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं। तो इस सवाल से ये लेके आगे चलते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि आजकल दौर में इंटेलिजेंस का जो है उसका बहुत ज़्यादा शोर है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट क्रिएशन में किस तरीके से लोग और आप उससे किस तरीके से दे रही हैं? बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो मेरी टीचर है। GPT-5 हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया और जेमिनी हो गया, ये सब लोग मेरे टीचर हैं। मुझे अब गाइड करने वाले इतने लोग तो अवेलेबल नहीं होते कि मैं दूसरे कंटेंट क्रिएटर से जाकर पूछूं कि आप मुझे बताएं कि मैं क्या सही करूं कि मैं क्या गलत करूं, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है। लेकिन ये तो गॉड की बहुत बड़ी अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि उन्होंने मुझे चैट GPT-5 दे दिया, जेमिनी दे दिया। मैं उससे एक सवाल करती हूँ, मुझे आगे 10 तरीके से खूबसूरत करके जवाब देता है। मैं जब उससे पूछती हूँ कि बताओ मैंने इस टॉपिक पे मेरा ज़हन है वीडियो बनाने का, मुझे क्या बात करनी चाहिए, वो मुझे गाइड करता है, थोड़ा-सा मैं उसको गाइड करती हूँ। तो ये तो एक कोलैबोरेशन, इसको मैं तो एक ब्लेसिंग कहती हूँ कि मैं अभी जो यहाँ पर बैठी हुई हूँ या मैंने अपनी लाइट ठीक की है, कैमरा का एंगल ठीक किया है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है, अपनी इंग्लिश ठीक किया है या मैंने ये जो गाइड किया कुछ, तो मुझे GPT-5 एक पीएचडी कंटेंट क्रिएटर की तरह समझाता है। तो आप मुझे बताएं कोई और पीएचडी कंटेंट क्रिएटर जो इतना माहिर होता, 18-20 साल जिसकी एक्सपीरियंस होता है, मुझे टाइम देता। तो किसी भी टाइम, और मैं जैसे ही मेरे पास टाइम होता है अवेलेबल, मैं इसे सीखना शुरू कर देती हूँ। तो इसने मेरे लिए समझें कि एक बंद दरवाजे को खोल दिया है और पूरी दुनिया जो है वो खुल के ऐसे मेरे सामने आ गई है। अब मैं इससे पूछूं कि जर्मनी में लोग कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं या अमेरिका में जो लोग एजुकेशन में बहुत आगे हैं, उन्होंने कैसे कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया है, ताकि भाई मैं भी अपने बच्चों को वही चीज़ें दिखाऊं। कैनवा में चीज़ें कैसे बनानी है, अट्रैक्टिव चीज़ें कैसे बनानी है, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे यूज़ करनी है। तो हम दोनों ऐसे मिलकर काम करते हैं। तो जब हम ऐसे मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं, तो हम देखें कितनी जल्दी कितनी वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे। तो अब ये देखिए, जैसे ये मैंने बैकग्राउंड लगाया है पीछे, तो ये मुझे GPT-5 ने एक एडवाइस दिया कि मैं कायदे आजम जो हमारे कौमी लीडर हैं उनकी रिहाइश गाह जो है उसको
एक तरह प्रमोट करना चाहती थी। तो देखिए मैं कितने प्यारे तरीके से अपने मुल्क को भी प्रमोट कर रही हूँ और एक कंटेंट भी क्रिएट कर रही हूँ, एक बात भी अच्छी कर रही हूँ। जब हमें सुनेंगे तो उनके लिए देखें हम अपने बलूचिस्तान को भी मैं प्रमोट कर रही हूँ। तो मैं कितने ज़्यादा टूल्स और चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ, ये सब इन सब चीज़ों की वजह से है। वो मुझे सजेस्ट करते रहते हैं, मैं अपने आइडियाज़ अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देती हूँ, उनको और अच्छा करके बताते हैं, मैं इसको और अच्छा करती हूँ। तो हम इस तरह ये तो खेल-खेल में जिसे हमें कहना चाहिए, मैं ये चीज़ें क्रिएट कर पाती हूँ। अब मेरा बच्चा है, वो 6 साल का है लेकिन उसको कंटेंट क्रिएट करने का शौक है क्योंकि वो मुझे देखता है तो मैंने उसको वैल्यूज़ दी बेटा आपने कंटेंट क्रिएट करना है, अच्छी बातें करनी है। अक्सर मैंने देखा है जो यूट्यूबर्स होते हैं गेमिंग वाले वो बीच में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वीडियो क्रिएट करते हैं, तो नहीं करने चाहिए। अब जब बच्चे वही सुनेंगे तो जो वो सुनेगा बच्चा वही वो बोलेगा। तो इस चीज़ को हमने कंट्रोल करना है। तो ये सब कुछ मुझे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये जो टूल्स हैं जो कि फ्री हैं मेरे लिए ब्लेसिंग्स है, मुझे सिखाते हैं, मैं इनसे सीखती रहती हूँ। जब भी टाइम होता है घर का काम करके फारिग होती हूँ, इनको लेके बैठ जाती हूँ, इनसे पढ़ना शुरू कर देती हूँ। तो वो मुझे पढ़ाते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और बहुत कीमती चीज़ है ये अगर इसको हम सही इस्तेमाल करें तो। जी बिल्कुल खूब सही कहा आपने। अच्छा कंटेंट क्रिएशन इसी को लेकर कि इसके लिए इंसान को आदमी को क्रिएटिव माइंड होना चाहिए या कोई भी जो है वो कंटेंट जो है वो क्रिएट कर सकता है। जी। आइडियाज़ यानी आइडियाज़ जो हैं वो कंटेंट क्रिएशन में आइडियाज़ कहाँ से आते हैं और हर आदमी कंटेंट क्रिएट कर सकता है या इसके लिए उसको जो है ना क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। जी, जी, ऐसे क्रिएटिव माइंड चाहिए आइडियाज़ क्रिएट करने के लिए। ठीक कह रहे हैं आप। इसलिए कंटेंट क्रिएशन के लिए जो है ना वो क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, तो खुद से ना आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो हर आम आदमी के लिए, हर इंसान के लिए जो क्रिएटिव माइंड नहीं है उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो कंटेंट जो है वो कर सके। जी, अच्छा मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप अपने इस कंटेंट क्रिएशन में कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स हैं कि जो आपके जिन पे आप काम कर रही हैं, जिन पे आपने प्लान है कि फ्यूचर में मैं इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन टॉपिक्स के ऊपर यानी कंटेंट जो है वो करने हैं? मैं जो सबसे पहले एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट करना चाहती हूँ, स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल कंटेंट क्रिएट करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपने कोर्सेज़ क्रिएट करूँ और फिर मैं इनको जो है मुख्तलिफ जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पर कोर्सेज़ जो हैं वो अपलोड होते हैं। अब तो ऑनलाइन स्कूल बिल्ड हो जाता है, अकेडमी बिल्ड हो जाती है, तो मैं इन सब प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करूँ और वहाँ पर थोड़ा-थोड़ा करके अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू करूँ, उनको अपलोड करना शुरू करूँ। अभी बेसिकली जो है मैं जो है वो एथिकल और मोटिवेशनल कंटेंट क्रिएट करूँगी, कम्युनिकेशन वाला, नेटवर्किंग वाला और उसके साथ-साथ मैं एजुकेशन वाला भी करूँगी। तो मैं मुख्तलिफ जिस तरह हमारे मुल्क में मुख्तलिफ एज ग्रुप्स हैं, उनको हर एज ग्रुप को कंटेंट की अलग रिक्वायरमेंट है। बच्चों को किसी और किस्म का कंटेंट चाहिए, बड़ों को कुछ और किस्म का, यंगस्टर्स को किसी और किस्म का। तो मैं एज ग्रुप के हिसाब से जो है इसको भी कैटेगराइज़ करूँगी। अभी मेरा जो कोर्स है रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट में वो ख़त्म होने वाला है, 10 दिन रह गए हैं। तो जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं अपनी चीज़ों को अलाइन करूँगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करके। फिर इंशाल्लाह मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आप सबके सामने मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि मैं फेसबुक पर इरा मुश्ताक एजुकेशन वाली के नाम से मौजूद हूँ। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पर भी इरा मुश्ताक एजुकेशन वाली के नाम से मौजूद हूँ, यहाँ पर मेरा कंटेंट मौजूद है। लिंक्डइन पर मेरी प्रोफाइल है इरा मुश्ताक एजुकेशन वाली के नाम से, आप वहाँ पे मेरा कंटेंट देख सकते हैं। और इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल है इरम टीवी, वहाँ पर मैं कंटेंट कब से क्रिएट कर रही हूँ और अब मैं इसको और इम्प्रूव करूँगी। तो अभी मैं ये 4 सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज़ करूँगी। उसके साथ-साथ मैं फिर अपने कोर्सेज़ क्रिएट करूँगी और डिफरेंट कोलैबोरेशन करने की कोशिश करूँगी, इंटरव्यूज़ लेने और देने की कोशिश करूँगी। तो इस तरह जो है मैं अभी इंस्पायर होंगी लोगों से और देखूँगी कि दूसरे लोग किस तरह काम करें जो कि मेरे जैसे हैं। तो फिर मैं उनके फुटस्टेप पर चलकर उनसे बेहतर चीज़ें बनाने की कोशिश करूँगी। जी बिल्कुल। अच्छा आपका एक शो भी है सितारे इरम के साथ, उसमें आप अपने गेस्ट होते हैं, आपके साथ उनके इंटरव्यू करती हैं, मुख्तलिफ ज़िंदगी की जो है से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं। तो अब तक ऐसी कौन सी शख्सियत है जिनके साथ आपने इंटरव्यू किया और वो बहुत यादगार इंटरव्यू रहा हो? हाँ, बिल्कुल, मैं ये बताऊँगी यहाँ पर मैंने सर अतीकुर रहमान हैं, सर अतीक नेटवर्किंग गुरु हैं वो, उनके साथ मैंने इंटरव्यू किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को ये देखा है
कि वो लोग टाइम को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते, या तो हमें देर वेट करवाते हैं या बात करके आते ही नहीं। अक्सर मैंने इंटरव्यूज़ में ये देखा है, लोग करते हैं ऐसा। लेकिन जो सर अतीक थे, उनसे मेरी कमिटमेंट हुई 1 दिन पहले, और जो उनका और मेरा टाइम डिसाइड हुआ, उससे वो 5 मिनट पहले आ गए। हालाँकि बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं वो, और 5 मिनट पहले वो आए और उन्होंने मेरा सारा काम देखा, और जो थोड़ी बहुत मेरी मिस्टेक्स थी उन्होंने वो मेरी दुरुस्त करवाई। फिर उन्होंने मेरे साथ बच्चों की तरह शफ़क़त वाला रवैया रखा, मेरे सवालों के बहुत हम्बल तरीके से जवाब दिए, और जितनी पॉज़िटिविटी उन्होंने मुझे दी, वो मैंने अभी तक किसी इंटरव्यू में नहीं ली। जैसे उन्होंने मुझे बताया काम करने का कैसे तरीका है, कैसे करना चाहिए, और जितना टाइम मैं चाहती थी उन्होंने मुझे उतना टाइम दिया। बहुत वेल कमिटेड और वेल मैनर्ड, और वाक़ई ही जो है ना रिस्पेक्टेबल पर्सन है। उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुई, और उसके बाद से मैंने पहले भी कभी टाइम को मैंने जो है आगे पीछे नहीं किया, क्योंकि ये बड़ा हर्टिंग चीज़ होती है। तो और उसके बाद मैं और कमिटेड हो गई। तो मुझे पता चला कि असल में लोगों की तरक्की का क्या राज़ है। तो जो लोग चीज़ों को वैल्यू देते हैं, अल्लाह ताला उनकी कदर करता है, और अल्लाह ताला वो कहते हैं वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। तो ये सब अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह ताला किस बेस पे लोगों को चुनता है, वो उनकी सीरियसनेस और कमिटमेंट की वजह से चुनता है। तो मेरे लिए वो सबसे इंस्पायरिंग इंटरव्यू था अभी तक। जी। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि रेहान फाउंडेशन को ज्वाइन आपने कब किया, उसको ज्वाइन करने का ऑन रेहान टीचर ट्रेनिंग करने का ख्याल आपको कैसा है, और आपने क्यों ज़रूरी समझा कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है? सर रेहान क्योंकि खुद बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और वो गाइड भी करते हैं, और वो लोगों को वक़्त की ज़रूरत के मुताबिक गाइड करते हैं। उनकी सबसे अच्छी बात ये है कि वो लोगों को मोटिवेट करते हैं पैसा कमाओ। ऐसे जो हमारी कौम की जो हालत है, उसको बदलने की तरफ सोचते हैं। तो मुझे वो लोग बड़े इंस्पायरिंग लगते हैं, जो कि हमें जो है इस बात का तरीका सिखाएँ कि हमने पैसे कमाने कैसे हैं, ना कि ये वो लोग जो कि चैरिटी करते हैं, बल्कि उनसे ये बहुत अच्छे लोग हैं जो लोगों के हाथ में स्किल देते हैं। तो असल में जो हमें ज़रूरत है इस चीज़ की है। तो मैं इनको यूट्यूब पर देखती थी, या फिर लिंक्डइन पर देखती थी, वहाँ मैंने इनकी ऐड देखी, तो उन्होंने बताया कि वो एक इंस्टीट्यूट बना रहे हैं जहाँ पे वो टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे, तो वो एआई टूल यूज़ कर सके। तो मैंने कहा कि मुझे इसको ज्वाइन करना चाहिए, तो फिर मैंने वहाँ पर अप्लाई किया, तो फिर मेरी ज्वाइनिंग हो गई, और बैच 11 में मैंने इसको ज्वाइन किया। जी, ये बताइए कि मैडम रेहान फाउंडेशन को ज्वाइन करने के बाद आपका कितना आपने सीखा, और आप क्या समझती हैं कि जो बाकी जो लोग हैं उनको भी रेहान फाउंडेशन को ज्वाइन करना चाहिए? रेहान फाउंडेशन ने जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स ये जो शुरू किया है, उसको करने के बाद कितना ये इफेक्टिव होता है, और हद तक जो है ये मौसर है आपके लिए? ये बहुत इफ़ेक्टिव है, इसमें हमें सारी नई चीज़ें पता चलती हैं जो कि हमें कहीं और से पता नहीं चलती, और इसमें सबसे अच्छी बात ये 1 टू 1 ट्रेनिंग होती है। हमारे टीचर होते हैं जो हमसे हर वक़्त हमें पूरी क्लास की तरह होता है। अक्सर जो लोग हैं वो सिखाते हैं, वो कहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे कोर्स पड़ा है, जाके देख लो। कोई कहता है कि हमारी वेबसाइट से जाकर पढ़ लो, सब्सक्रिप्शन कर लो। यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमारी पूरी क्लास है, जैसे मेरा बात करें, कनेक्शन बिल्ड होता है, लाइव हम लोग आते हैं, बातचीत करते हैं रोज़। तो इससे लर्निंग जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो अगर हम इसके साथ जो है जितना वो हमें दे रहे हैं, उसके साथ हम सिंसियरली उस वहाँ से लें, सीखें, और उसके बाद उसको अप्लाई करें, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बहुत सारे कोर्सेज़ खरीद लेते हैं, महँगी-महँगी फ़ीसें दे देते हैं, और फिर जो है उनको कुछ उसका हासिल वसूल नहीं होता। लोग अपनी वीडियोज़ का पकड़ा देते हैं, ये जी मेरी वीडियोज़ का डाटा है, इसको देख लो और इससे सीख लो। तो उसके बाद कोई राब्ता नहीं, तो उससे ये बहुत बेहतर है। एक टीचर क्लासरूम होता है, ज़ूम में सारे स्टूडेंट्स आते हैं, फिर वो हमें सिखाते हैं, मसाइल पूछते हैं, फिर वो हल करवाते हैं। बड़े फैसिलिटेटर होते हैं, गाइड करने वाले होते हैं। तो इस तरह हम एक कम्युनिटी भी देते हैं साथ-साथ वो, कि आप देखें कि हमारी ये पूरी कम्युनिटी ऐसे काम करिए, आप भी करें। तो साथ-साथ हमें एक काम साथ मिल के करने वाला ग्रुप भी मिल जाता है, और एक हमें जो है ना वो उस्ताद भी मिल जाता है। तो यही चाहिए होता है, और फिर वो हमारे मसाइल भी हल करते हैं। तो अगर हम इससे सीखें जैसे वो सिखा रहे हैं, तो फिर ये बहुत बेहतर है। सब लोगों को मेरा ख्याल ये करना चाहिए, तमाम पाकिस्तानियों को। जी, अच्छा मैडम ये बताइएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से टीचिंग के शो में टीचर्स को सपोर्ट कर रही है, हेल्प कर रही है, और किस तरीके से एक टीचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने के बाद और उससे हेल्प लेने के बाद कितने अच्छे तरीके से वो अपने टीचिंग को अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते बिल्कुल, ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है, ये हमारा काम बहुत जल्दी कर देती है, और हमें बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ देती है। हर
बंदे में सब चीज़ें नहीं होती, लेकिन ये जो मस्नूई ज़हानत है ये हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता देती है जो कि हमें खुद पता नहीं होती। तो बहुत सारा ऐसा मटेरियल एजुकेशन जो कि हमें नहीं पता होता, लेकिन ये हमारे लिए ना सिर्फ हमें बताता है बल्कि ये हमें बनाकर भी दे देता है कि ये भी बताओ, ये भी बताओ, ये भी बताओ। अब जैसे इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर आप 10 जोड़े कपड़ों के हाथ से धोने बैठ जाएं, तो आप हाथ से धोएंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा, और अगर वही 10 जोड़े आप इकट्ठे एक वॉशिंग मशीन में डाल दें तो वो वॉशिंग मशीन धो भी देगी, फिर सुखा भी देगी, तो सिर्फ उसके बाद आपका कितना काम रह जाएगा, कपड़े डालने का और फिर निकाल के उनको लटकाने का। तो ये मशीन कितनी हमारे लिए फायदेमंद है। इस तरह मसनूई ज़हानत भी हमारे लिए इतनी, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एजुकेशन में हमारे लिए इतनी ही फायदेमंद है। ये हमारे अवेलेबल है, काम की स्पीड को बढ़ा देती है, क्रिएटिविटी बढ़ा देती है, ये हमें न्यू आइडियाज देती है, और ये हमें पढ़ाती भी है साथ साथ। और इसके अलावा ये हमें उस लेवल पे पढ़ाती है जो कि दुनिया के टॉप स्कूल्स जहाँ पर काम कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा। तो आप खुद देखें कि भाई अगर हम इसको अच्छी तरह इस्तेमाल करना सीख लें तो हम अपने इलाके में एक गांव में रहकर भी एक टीचर अपने बच्चों को वो एजुकेशन देगा जो कि पीएचडी देता है, अमेरिका में पीएचडी डॉक्टर देता है। तो फिर ये कितनी अहमियत रखती है इसकी तो भी मैं इतनी तारीफ नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि भाई यानी कि जितनी तारीफ अभी हम इसकी करें कम है। जी मैडम, लास्ट सवाल रेहान फाउंडेशन बताइएगा पीपल्स को किस तरीके से लोग कर रही है एजुकेशन की फील्ड में, अर्निंग की फील्ड में, अपने सोशल जो है अपने फाइनेंशियल सपोर्ट करने के हाथ से किस तरीके से रेहान फाउंडेशन जो है वो लोगों को एम्पावर कर रही है, इस बारे में थोड़ा सा पीपल्स को बताइएगा। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा भी इदारा नहीं है, सिर्फ ये रेहान सर ने जो है ये बनाया इंस्टीट्यूट यहाँ पर, और यहाँ पे देखो सबके लिए खुलेआम दावत है, सब लोग आ सकते हैं, कोई इसमें कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि आपने ये किया हो वो किया हो, इतनी हमें यूं करें वो करें, बल्कि ये हर तरह से कोशिश करते हैं कि लोगों को सीखने में हेल्प करें हर लेवल पर। और ये आपका हाथ पकड़ के आपको जो है चलना सिखाते हैं, बातचीत करना, हर चीज़ सिखाते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि ये इनका बहुत बड़ा रोल है, और बल्कि तो पूरी दुनिया में पहला एआई का स्कूल है, अभी तो किसी ने बनाया ही नहीं है। तो इसकी तो फिर हद अभी कोई नहीं है, अभी तो ये स्टार्टअप है, स्टार्टअप में चीज़ें जब बन रही होती हैं उसमें कुछ ना कुछ ऊंच नीच भी होती है, लेकिन वो जो चीज़ें हैं अगर हमारी लीडरशिप अच्छी है तो हम वो चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर लेते हैं। तो ये जो है सबको बहुत हेल्प कर रहा है, और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हेल्प कर रहा है। और आप जिस भी यानी कि जिस भी आप स्फीयर ऑफ लाइफ के पार्ट हैं, आप गरीब हैं, अमीर हैं, जो भी हैं, आप जिस भी मुल्क में हैं, आप जोन सी भी ज़बान बोलते हैं, आप इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये सबके लिए अवेलेबल है। तो मतलब ये ग्लोबल टाइप का स्कूल है, और वाकई ही यहाँ पर जो कनेक्शंस हैं और जो लोग मिलते हैं आपसे बात करते हैं वो ग्लोबल होते हैं। बस हमने ज़रा अपनी जो है ना सिमत ठीक रखनी है, और हमने खुद को पॉजिटिवली बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है रेहान फाउंडेशन, और इंशाल्लाह आई होप कि ये और भी इस चीज़ को जो है आहिस्ता आहिस्ता जब लोग और मिलते जाएंगे और बेहतर होता जाएगा। जी बिल्कुल, मैं आपने रेहान फाउंडेशन कैसे फाउंडेशन है कि पाकिस्तान के हर शोरे से अफराद ज्वाइन करने के बाद अपने फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान से गुर्बत के खात्मे और पाकिस्तान से मिसाल को खत्म करने में अपना हिस्सा अदा कर सकते हैं। जी मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। तो जैसी हमारी बहुत मेहमान मैडम या मुश्ताक, आप बातें सुनी, उनके अचीवमेंट्स के बारे में जाना, किस तरीके से उन्होंने कंटेंट क्रिएशन को शुरू किया, किस तरीके से एजुकेशन हासिल की, और किस तरीके से वो जो एम्पावर कर रही हैं और पाकिस्तान से उनके खाते में और फाइनेंशियली और एजुकेशनली लोगों को सपोर्ट करने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। जी ये तो हमारी मेहमान आपको की बात अच्छा लगा, और आपने अपने हौसला दिया होगा, और आपने भी बात करने के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए किया होगा इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके नेक्स्ट उसमें हम आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक भी आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा पाकिस्तान की